That's true. That's very true. So, welcome, good evening. Welcome to the 93rd episode of Wednesdays for Waste Warriors. I'm very happy to have Anuradha Gupta with us, the founder of Prithvi Innovations. And we have a lot many guests जो हम कहीं कहीं से हम connections हैं. So welcome everybody. Thank you for joining. इतने सारे बारिश तूफान के मौसम में it's a very lovely warm little gathering that we have here. And as you know, Wednesdays for Waste Warriors is a series जो पिछले 2 सालों से चल रही है और अब हम धीरे धीरे 100 मार्क की तरफ चल रहे हैं. So my waste, my responsibility is thank you. My waste, my responsibility is our. It started as a small WhatsApp group 4 years ago, and उसी से हमने ये आगे करा. And now we have an organization, Iti Skill School. So climate action, waste management, sustainability, these are the skills, life skills that we want everyone to have, whether they are adults, children, professionals, housing societies, you know. So that this is the reason कि हम सारे waste warriors को अलग अलग जगह से बुलाकर because कार्बन फुटप्रिंट भी थोड़े कम करने होते हैं, इसलिए हमने ऑनलाइन चुना है. और सब लोग उनसे बात कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो वो कर रहे हैं उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं, उसको अपने तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस. सो थैंक यू अगेन अनुराधा फॉर ज्वाइनिंग एंड एक्सेप्टिंग आवर No, इनविटेशन. it's आई a वुड joy for me also to be here with all of you. थैंक यू. आई वुड स्टार्ट विद द रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगी. हु इज अनुराधा, व्हाट डज शी डू एंड व्हाई डज शी डू व्हाट शी डज. आप बता सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों दोनों भाषा में आप बात कर सकते हैं. So first of all, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much. तहे दिल से we are really happy and grateful that we have been given this beautiful opportunity to be together, to share and discuss and exchange some beautiful thoughts, ideas, and to learn from each other and to keep giving and to keep receiving also. So thank you so much, and I would also welcome all the lovely audience and whoever has joined today. I can see few of them, so I'm not that familiar with all of you, but it is lovely having you. So who is Anuradha Gupta? You can see right now in front of you. So what would you say? Who is Anuradha? Quickly type in the comment कि अनुराधा अभी क्या लगता है आपको. ठीक वेरी है. So स्वीट क्यूट I would बेबी. so I would say I'm basically a nature lover. मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है and I really love everything about universe and nature. So I'm a nature lover and everything what I am is because of nature and my loving parents. Because पंच तत्वों से ही हमारा ये शरीर बना है और मैं उन पंच तत्वों को बहुत दिल से बहुत मानती हूँ and I feel very close to them. So you can say Anuradha is amalgamation of panch tat who really feels, loves, respects, and tries to give back whatever she can back to the universe. Though I'm a very small speck in the whole universe, a very, very tiny molecule, not even a small speck, I would say. बहुत insignificant है हम. मैं बहुत insignificant हूँ, but still जितना भगवान ने ईश्वर ने क्षमता दी है या यूनिवर्स मुझसे कराने को कहता है, करने को कहता है. So I have a direct connection somehow. So I just, whatever it says, I try to do to my best capability and capacity. And I'm a trash freak also. तो अक्सर आपको लगेगा कि ये क्रेजी सी लड़की या महिला कौन है. अगर सुबह कभी आप लखनऊ आएंगे तो मैं घूमते घूमते कुछ इधर उठा रही होंगी, कभी उधर उठा रही होंगी. और पड़ोसी अड़ोसी भी बड़ा छुप छुप के देखते हैं कई बार कि ये करती क्या है, ये क्यों उठाती है, हमारा कूड़े में इनको क्या इंटरेस्ट है. और वैसे उन्होंने कूड़ा फेंका होता है, उनको कोई Yeah. मतलब नहीं है उस कूड़े से. जैसे ही वो देखते हैं कि मैं कुछ उठा रही हूँ तो देन दे बिकम वेरी क्यूरियस एंड दे से नहीं नहीं ये रख दीजिए, ये हमारे काम का है. हाँ. तो आई वेरी हैप्पी अबाउट इट. तो मैं जबरदस्ती झुक के उठाने की कोशिश करती हूँ. So I'm a trash freak. I really love to innovate and I'm a simple person, I would say. So I love to innovate a lot. और मुझे हमेशा कुछ क्रिएटिव करने की पता नहीं जुनून या एक कीड़ा चढ़ा रहता है कि कुछ भी सीखने का, करने का, एक्सप्लोर करने का. और ट्रैश को लेके मैं काफी चीजों को इनोवेट करने में मतलब मुझे मजा आता है. आई रियली एंजॉय एंड आई फील दैट इन अ पीस एंड सेटिस्फेक्शन व्हेन आई एम एबल टू डू समथिंग व्हिच रिड्यूसेस द कार्बन फुटप्रिंट्स इन द सेंस. बहुत छोटी सी बात हो सकती है
कि अपना कचरा संभाल के रखना या उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्पोज करना, या खाने की बर्बादी में अपनी मतलब भूमिका निभाना, प्रॉपर प्लान करना, या एक कोशिश करना कि हम टॉक्सिक केमिकल्स से बच के रह सकें, या एटलीस्ट उनको इधर उधर डिस्पोज ना करें जिससे दूसरे लोगों को प्रॉब्लम। और व्हेन आई से दूसरे लोग, इट इज नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स, इट इज द मतलब जो बेजुबान हमारे जानवर हैं, हमारे पशु पक्षी हैं, तो उनके बारे में भी मुझे मतलब ध्यान तो बहुत रहता है। बस एक ही चीज का मुझे गिल्ट अभी है जो आपको देख रहे होंगे, मेरे काले बाल तो अभी मैं डाई लगाना नहीं छोड़ पाई हूँ। मैं तो सो नहीं नो आई एम ट्राइंग so that is one little thing I have not been able to overcome, but I'm trying my best. So this is Anuradha, and I'm really thankful and grateful to everybody who has been part of my learning, my journey, especially my parents, my teachers, my school, and my a lot of members and people who have just we met. I think universe just connected us together. So I'm really grateful to each and everyone who has touched my life and who has touched Prithvi Innovations in any way. So I think other than awards and achievements that you can see is, anywhere, but as a person, I love to innovate, love to experiment, and love to learn from each other. So that's Anuradha. I think we love this, Anuradha, right? Everyone? So thank you, Anuradha, for sharing. And I agree. मैं भी बिल्कुल उस यूनिवर्स के कनेक्ट से बहुत I feel that and I believe in that. And I also believe that मैंने स्टीव जॉब्स का एक he like I really love Steve Jobs. So उनके बोले हुए बहुत सारे ऐसे you know वर्ड्स हैं जो Words. मुझे बहुत डीपली ऐसे एनग्रेव हो गए हैं मेरे उसमें। तो वो एक उन्होंने बोला था दैट वी आर ऑल जस्ट डॉट्स इन द यूनिवर्स इन द बिगर Yes. पिक्चर, बट लेट्स बी द शाइनिएस्ट डॉट। मतलब Wonderful. उस डॉट बन के भी कुछ तो ऐसा कर सकते हैं जो कि यूनिक रहे और अलग रहे। सो आई बिलीव इन दैट एंड आई लव इट दैट आप भी वैसा सोचते हैं। इट्स जस्ट हम लोग आज एक एक प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, एक साथ जुड़े हैं, तो देयर मस्ट बी सम बिगर स्कीम जिसने हमको जोड़ा है और यहाँ पे लेकर आया है। सो ग्रेट। नाउ आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई? डिड बचपन से तो आपने सोचा नहीं होगा कि आप ये सब करेंगी। सो हाउ डिड यू लाइक काइंड ऑफ you were inspired, you were pushed because of something? How did this happen कि आपका कचरे में इंटरेस्ट या एनवायरमेंट, मतलब लेट्स से कचरा, उसके प्रति आपकी ये जागरूकता, ये इंटरेस्ट कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? क्या आपको याद है कोई इंसिडेंट? Yeah, I think it's been a long journey, but definitely it was inspired by Mother Earth and Universe only. कहीं से उन्होंने ही मुझे कुछ संदेश भेजा होगा जो मेरे दिमाग में ये कीड़ा बैठने लगा धीरे धीरे करके. So it was long back. I was always looking for, always engaging myself in some creative learning pursuits. And it is long back, almost I would say in 2020, 2002 की बात है. हाँ। जो when we were in Gomti Nagar area in Lucknow. हम्म। So there, I was already working with Tata Motors as a cost accountant, हम्म। and I was enjoying my work, no doubt. But definitely, I was looking for something more in terms of more doing something more creative on a daily basis. So that is where, unfortunately, the Kargil war was happening at that time. It was about to happen. So at that time, I just had this idea that let's collect some funds, let's raise some funds, right, to contribute to the country. So that was a time I thought of organizing a small fete wherein all the community people could just join in and come together with a beautiful feeling of sharing and caring for each other, for the country also. So that is how it started, and like I was able to, with the grace of God and everybody's support and help, I was able to raise at least 50,000 at that time, long time back. ये कारगिल वॉर के बाद की. तो उसके बाद जो सब पेरेंट्स से और जो सोसाइटी से जो कनेक्ट हुआ, so everybody started saying कि why don't you do something for our children, because most of the time children, when they are free, when they are on holidays, they really don't have something very constructive to do. So I was always keen in coming up with new plays, new games and activities. So I thought, okay, why not start a children's club? So that is how I started the children's club. It was a small club of the neighboring
children joining in. So every day we used to have just 1 hour time. Not every day, every Sunday we used to call the students, children, and we used to have a lot of fun. So there was a lot of innovative activity. We used to explore so many things about science, environment, culture, and that is where I suddenly started feeling कि somehow the way we are reacting to the issues and the resources that we have in surplus around us, somehow we are not respecting them in the real sense. The way we respect each other, the way we respect our parents, our children, and our family members, and our community people, but somehow I felt that we were not respecting water, we were not respecting the free energy which comes from the sun, we were not respecting so many other birds and animals which are around us. So that is what made me feel that let me just take up this and do something which can just bring us closer to nature. So that is how my journey with I would say nature started, and that is how we started first of all thinking about कि आता कहाँ से जाता कहाँ. तो जो भी हमारा कचरा होता है, राइट, कचरे की बात करते हैं पहले. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा थॉट था जो मेरे दिमाग में ये कोटेशन की तरह बैठ गया, और फिर मैंने वो वाली जर्नी शुरू करी कि लेट्स एक्सप्लोर. तो पूरा लाइफ साइकिल जो है कचरे का, कचरा बनता कैसे है, कचरा डिफाइन कौन करता है, आप डिफाइन करते हो, मैं डिफाइन करती हूँ, या कम्युनिटी डिफाइन करती है. सो इट्स अ वेरी लाइक मतलब रिसर्च बेस्ड पूरा इस पे इन डेप्थ स्टडी हो सकती है. So that is how my interest and inclination towards understanding waste, first of all, understanding why it is wasted, मतलब पहली place में why it is known as waste. So then from there it started. तो वेस्ट को समझना, फिर वेस्ट के प्रति मेरा रिस्पेक्ट डेवलप हुआ. आई फेल दैट आई शुड नॉट जस्ट थ्रो एनीथिंग एनीवेयर एंड. तो फिर मैंने वहां से जितने भी वेजिटेबल पील्स होते थे अपने घर के, तो मैं उनको, उनके अंदर मुझे कुछ लगने लगा कि नो, एंड देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग, एंड देन आई स्टार्टेड जस्ट ट्राइंग समथिंग ऑन माई ओन. तो फिर मैंने वेस्ट को रीयूज करना, उसको फिर से मतलब रिफ्यूज करना, मतलब जो एक्स्ट्रा चीजें थी. तो आज का जो पूरा टॉपिक है, इसीलिए मैंने लिया था कि जो हमारी 15 आवर्स हैं पृथ्वी इनोवेशंस की, जो कोर फिलोसफी है. सो दैट इज हाउ द होल जर्नी स्टार्टेड, कि वेस्ट से हमारी जो एक रेंडवूज है या एक साक्षात्कार जो हुआ एक रियल मायने में. तो वेस्ट को वेस्ट बनाया किसने, मैंने कब वेस्ट बनाई. ये पेंसिल है मेरे पास, अभी ये छोटी हो जाएगी, और मैं अगर इसे फेंक दूंगी तो देन इट बिकम्स अ वेस्ट. But if I don't throw it away, I put a cover in it and I try to still reuse it. Yes. Then it is not a waste. Yeah. तो वेस्ट किस लेवल पे आप जाके एक रिसोर्स को, वेस्ट इज नथिंग बट अ रिसोर्स. जो रिसोर्स एक उसकी एक्सपायरी आपके हिसाब से हो गई, बट दिस एक्सपायरी इज अ वेरी रिलेटिव टर्म, राइट. इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो इफ यू कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ दैट रिसोर्स in some way, either through some innovation, through some thinking, some technology, or anything. So the moment you can prolong the life, the resource will continue to be a resource. It will not convert into a waste. Yeah. So that was, and एक बहुत अच्छी सी चीज है जो मुझे लगती है माइंडसेट पे बहुत काम करती है अनुजा, कि हम लोग अक्सर, आप देखिए, हम लोग डस्टबिन जो है नीचे रखते हैं, राइट. हमेशा डस्टबिन नीचे होता है. ओके, it's not at the same level at ours. It may sound little funny and it may sound little मतलब काफी क्रेजी सा थॉट लगेगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम उसको डिग्रेड पहले से ही मेंटली हमने उसको डिग्रेड करा हुआ है. कि वेस्ट मतलब समथिंग टू बी मतलब डिस्गस्टिंग थिंग, समथिंग टू बी कंप्लीटली टेकन अवे इमीडिएटली, राइट. तो अगर हम किचन वेस्ट को, जितने भी हमारी सब्जी के छिलके होते हैं, अभी हमने कोई फल खाया, आम खाया, तरबूज खा रहे हैं, कल वाटरमेलन खा रहे हैं, तो छिकल अभी तक इतना बढ़िया था, वो रिसोर्स था हमारे लिए, फ्रूट था. एंड द मोमेंट वी हैव पील्ड इट अप, राइट, तो वो पील्स एकदम से इतनी इतनी डिस्गस्टिंग कैसे हो गए, आई कांट अंडरस्टैंड, राइट. वो पील्स जो अभी इतनी वैल्यूएबल थी, जिसने प्रोटेक्ट करा हुआ था आपके प्यारे से फ्रूट को, वो इतनी डिस्गस्टिंग कैसे हो गई. हमने बनाया ना उन्हें डिस्गस्टिंग, क्योंकि हमने उसको मिक्स कर दिया. बाकी जो हमारे डस्टबिन में सारा कचरा पहले से पड़ा था, उसी में हमने उनको भी डाल दिया. So that is where it became disgusting, and that is where it will start rotting, and it will start stinking and giving smell and inviting all kinds of microorganisms. But अगर हम उसको respectfully अलग इकट्ठा करें, right, कोई भी हमारी वेजिटेबल पील है, कुछ भी है, अगर हम अलग से इकट्ठा कर लें, और वो जो बाउल है वो हमारी शेल्फ पे ही रखा है, जैसे हमारे और बर्तन रखे हैं, it's a neat and clean bowl. So we have that bowl. In that bowl we are daily collecting all the peels and putting it there. So then definitely we know कि ये बाउल मुझे फाइनली इन पील्स को कंपोस्टिंग के लिए ले जाए.
Yes. So this is just a matter of mindset, just a matter of little change in the habits and the way we do things. So that is, I think, I have lots to tell, but I would leave it to you आई to कंप्लीटली continue. आई कंप्लीटली एग्री। हम लोग वो एक्चुअली जो कचरा है, छी है, गंदा है, ये सब जो है वो लेबल्स हमने ही दिए हैं। Hmm. तो एक जैसे मैं बहुत सारे कैंटीन, स्कूल या कहीं भी जाती हूँ और वहां पे लिखा रहता है ना कि उतना ही लें जितना कि आपको खाना है। उसके हाँ, उतना ही लेना। बावजूद उसके बावजूद मैं हमेशा जहाँ पे प्लेट्स रखी रहती है या जहाँ पे फेंका जाता है, मैं वो जगह को बहुत, मुझे एक अट्रैक्शन है उसको देखना, कि यहाँ से असलियत पता चलती है उस पूरे इवेंट की। तो मैं वहां जाके देखूंगी, Right. कितने भी वहां पे डिग्री होल्डर आए हैं या बड़े से बड़े वक्ता आए हैं या जो भी आए हैं, लेकिन आप देखोगे एक और खाया हुआ समोसा फेंका हुआ है। वो Hmm. उसके अंदर मतलब हर चीज जो खाई जा सकती Hmm. थी वो फेंकी हुई हाँ, है। तो yes. मुझे कभी ये समझ नहीं आया कि लोग लेते क्या हैं, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं ना जिनको अभी तक समझ नहीं आता कि मुझे कितना लेना है, मेरा पेट कितने में भरेगा, शायद अभी तक हाँ, बड़े भी उसी में हाँ, अटके हुए हैं। राइट, अभी तक एब्सोल्युटली। उन्हें पता नहीं हमारी नीड क्या है, हमारी वांट क्या है। हम पेट की भूख के लिए नहीं खाते, हम आंखों की भूख के लिए करते हैं ये सब। तो जब तक हमने उसको टेम नहीं किया, ऐसा होता है ना कि आपको वो टेम करना होता है, डोमेस्टिकेट करना होता है जंगली उसको, तो वो हमारे अंदर ही है। जब तक उसको टेम नहीं करेंगे तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं बिहेव, मैं खुद बोलती हूँ सस्टेनेबल बिहेवियर चेंज इज माई मिशन। तो हाँ, वो तो एक बहुत ही ऐसा बहुत ही बड़ा लगता है कि अरे ये दाना कहाँ से आप पकड़ोगे, लेकिन वो छोटे छोटे जो एबीसी हैं, हमको वहां से काम। राइट। सो आई कंप्लीटली अग्री। जैसे अभी वृंदा ने भी ज्वाइन किया, वो उनके पास भी एक एनजीओ है और वो बहुत सारे बच्चे वहां पे आते हैं। तो हमने 2 ही क्लास वहां करी अब तक। पहली बार टी शर्ट से बैग बनवाए, दूसरी बार बायो एंजाइम बनाए। बच्चे लोगों ने ओके। बायो एंजाइम बनाने के बाद दे वर शॉक्ड, दे सेड अरे अब तक तो मैं फेंक देती थी, हाँ, राइट, बट एब्सोल्युटली। इट इज बिकम अ कितना थिंग। अमेजिंग है। Now they या will not throw it because now they know what can they do. So it's like an enlightenment। ऐसे एक ऐसे होता है ना कि ओ अब वो अनलॉक हो चुका है, अब मैं ऐसे ही करूंगी, अब मैं सबको बताऊंगी, बस that's what we have वाओ to do। फीलिंग, बड़ी वाओ फीलिंग होती है वो। इट्स अ वेरी Exactly। वाओ फीलिंग। एंड योर हार्ट फील सो हैप्पी, लाइक ये कोई भी खुशी बड़ी बड़ी कार खरीदने से नहीं मिलती। हाँ आप आज मैं आपको बहुत प्यारा सा एक इंसिडेंट बता दी, मैंने इंस्टा लाइव पे भी डाला था। आई वाज जस्ट आउटसाइड इन माय जस्ट डूइंग माय रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द कंपोस्ट एंड अदर हम्म, थिंग्स। तो मेरी मेंबर ने बताया कि दीदी आपने ये देखा? मैंने कहा क्या? मैंने तो नहीं देखा। एक बहुत पतली सी टहनी पे, इट वॉज अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ मास्टर पीस था, एक घोंसला। तो और ऐसा घोंसला मैंने आज तक नहीं देखा था। आई हाँ शेयर इट द रील ऑन द इंस्टाग्राम, आप लोग जरूर देखिएगा। तो इट वॉज कम्प्लीटली। और ये जो वेस्ट वॉरियर्स की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सबसे अच्छी वेस्ट वॉरियर तो वो चिड़िए हैं, हाँ क्योंकि वो बिल्कुल। सारी वेस्ट बनाती हैं अपना घोंसला। और वो इतना प्यारा था, अनुजा मैं बता नहीं सकती, मुझे इतना अच्छा लगा। मैं वहीं खड़ी रही 5-10 मिनट, और मैंने फिर कहा कि नहीं, ये खुशी सबके साथ बांटनी है, क्योंकि Yeah। मैंने खुद पहली बार ऐसा घोंसला देखा था। और उसके अंदर 3 प्यारे प्यारे छोटे बच्चे सो रहे थे। दे तो वर लिटरली स्लीपिंग, स्मॉल, इतने कोमल, इतने नाजुक। दे वर लिटरली स्लीपिंग, मतलब बिल्कुल बीक आंखें बंद थी और बीक छोटी सी दिख रही थी। हमने बहुत ज्यादा उनको इंट्रूड नहीं करा, बिकॉज वी वर कंसर्न कि वो डिस्टर्ब ना हो। बट वो जो घोंसला था ना, इट वॉज अ लाइक पीस ऑफ मिराकल। उसमें न्यूज़पेपर थे, ट्विग्स थी, पत्तियां थी। और कैसे बनाया, मतलब आप हाँ सोच ही नहीं सकते। आप अगर ट्राई भी करो ना अपने हाथों से, नहीं बना सकते। तो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग कि नेचर जो है ना, एवरी मिनट इट इज गिविंग यू मोमेंट्स ऑफ जॉय, मोमेंट्स ऑफ पीस। बट वी आर ईदर टू बिजी, वी डोंट हैव द टाइम, or we are just running after maybe some other happiness, and we are missing these little happiness which are right in front of us, giving us everything that we would like need in life. तो abs- मुझे लगता है हमें नेचर से, और जो हमारे पंच तत्व है ना, चाहे वो जल की बात हो, चाहे अग्नि की बात हो, चाहे भूमि की बात हो, या आकाश की बात हो, तो मुझे लगता है एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर yeah। is full of inspiration. And that is where you have to look for, if you are feeling disheartened about anything, if you are feeling demotivated about anything, that is where your energy, your power comes from. So if we are able to respect them, तो हम लोग यही बात करते हैं कि हम अगर ये पांचों तत्वों को समझ के उनको आत्मसात कर पाए,
हाँ, और अल्टीमेटली हमें जाना कहाँ है, जाना उसी वहीं मिट्टी पर में है। जाना है, बिल्कुल। राइट। जाना वही है, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। बिल्कुल। तो क्यों ना मिलके उनके साथ बॉन्डिंग हमारी कभी खत्म ना हो। और क्योंकि उनके साथ जो बॉन्डिंग है वो अगर रहेगी तो फिर हम कुछ भी ऐसा करने से मतलब सोचेंगे 10 बार। तो वही जो हमारे 15 आ रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट से ही शुरू होते हैं कि द मोमेंट यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग थिंग्स, जैसे आप माँ बाप को रिस्पेक्ट करते हो तो कभी आप उनको हर्ट करने का सोचते भी नहीं। गलती से हो जाते हैं हर्ट तो आप सॉरी कहते हो या कोशिश करते हो उनको मनाने की। So similarly, so if you respect each and every resource, every being on this planet, you will think twice before doing anything which is creating pollution, whether it is garbage pollution, आप खाने की बर्बादी कर रहे हो, पानी की बर्बादी कर रहे हो, या बिजली का वेस्टेज कर रहे हो, सो इट रिफ्लेक्ट्स एवरीवेयर। तो Yeah. हम लोगों के जो प्रोग्राम होते हैं वो संभव, द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज इटसेल्फ संभव, कि इट इज पॉसिबल। Yeah. इट इज पॉसिबल टू क्रिएट अ ग्रीनर, क्लीनर एंड हेल्दियर एंड टॉक्सिक फ्री कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज। बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर थिंकिंग। इट स्टार्ट्स, द माइंडसेट हैज टू चेंज अ लिटिल बिट, और थोड़ा एफर्ट तो करना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल। आदतें इतनी आसानी से बदली नहीं जाती और बदलने में समय लगता है। सो बिल्कुल। यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट, यू हैव टू हैव दैट कन्विक्शन कि नहीं, जो आप कर रहे हो इट इज नथिंग रॉन्ग, इट इज रियली गुड। And there will be people who will always be stopping you, demotivating you. Yeah. But I think if you are convinced from the heart कि आप कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हो, so I think the journey becomes more enjoyable and I it's a learning. Every बिल्कुल, moment is a learning. आई 100% अग्री। एंड आपने जो चिड़िया के घोंसले का वो एग्जाम्पल दिया है, इट्स एक्चुअली सो इंस्पिरेशनल कि अब आप जब बोल रहे थे उसके अंदर ट्विग है, उसके अंदर न्यूज़पेपर के छोटे वो हैं, तो जस्ट सोचिए कि वो उतना छोटा सा एक फेंका हुआ या फटा हुआ वो जो पीस होगा, जिसको देखने के लिए उसका यूजर जो कि ह्यूमन बीइंग है उसके पास वक्त नहीं था। लेकिन हाँ। एक ऐसी स्पीशीज जिसको ना पढ़ना आता है, ना न्यूज़पेपर क्या है उसका नाम पता है, ना उसका कुछ उसका रिलेशन ही नहीं है, बट उसके पास वो ब्रेन वेव है कि मैं इसको कैसे यूज कर सकती हूँ। सो जस्ट इमेजिन, वो हम सब में है। हम ये नहीं बोल या सकते कि इनोवेशन, ओ इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, और क्रिएटिविटी इट्स नॉट माय, इट इज देयर इन ऑल ऑफ अस। हमें सिर्फ उसको अनलॉक करना है। इट इज आवर एब्सोल्युटली। सुपर पावर, है ना? आई दैट्स व्हाट वी हैव टू अनलॉक। एंड मैं नेक्स्ट उसी क्वेश्चन पे आ रही हूँ कि आपके जो 15 आवर्स हैं, मैं भी वो सीखना हाँ। चाहती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम सब लोग इतना एक अमेजिंग चीज सीखने वाले हैं। आपने या ट्राइड एंड टेस्टेड एंड लाइक वैलिडेटेड जो आप सिखा बताने वाले हैं रिसोर्सेज, अगर हम सब ने वैसा सोचना चालू कर दिया तो आई थिंक द चेंज हैज बिगन। सो प्लीज शेयर अबाउट द 15 आवर्स। Okay, so 15 hours is nothing a rocket science or something. They are very simple, very much known to you. The only thing is हम लोग हमेशा पहले 3 आवर की बात करते थे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, राइट। उसके बाद 5 आवर हुए, रिफ्यूज जुड़ गया उसमें, और 1 आवर और जुड़ गया, राइट। तो व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन ऑल दीज इश्यूज एंड थिंग्स, सो मुझे लगा कि अगर हम लोग इसको 3 तक ही ना रहने दें, सर्कुलर पूरा सर्कल कंप्लीट करें। सो दैट इज वाई द थॉट एंड द इंस्पिरेशन केम। एंड आई फेल्ट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद रिस्पेक्ट। तो या। द मोमेंट हम रीयूज क्यों करेंगे किसी चीज को, हम रिफ्यूज क्यों करेंगे? हम तभी रिफ्यूज करेंगे जब हमें पता है कि वो जो एक्स्ट्रा पैकेजिंग आ रही है वो कहीं ना कहीं हम अल्टीमेटली कहीं फेंकने वाले हैं, उसको डिस्पोज करेंगे। मतलब अगर नहीं भी करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसका। तो अगर हम उसके प्रति, अगर हमारा रिस्पेक्ट नहीं होगा, वो जो कागज आया है उस कागज को बनाने में ना केवल पेड़ लगे हैं, बल्कि बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स लगा है, पानी लगा है, बिजली लगा है। तो या। अगर हम उस कागज के प्रति रिस्पेक्ट रखेंगे, कागज इज जस्ट अ कमोडिटी, बट उस कागज के साथ जुड़े हुए बहुत सारी लिविंग बीइंग्स हैं, राइट। बहुत सारा इकोसिस्टम इन्वॉल्व है, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो इनफिनिट। मैं बच्चों के साथ एक्सरसाइजेस करती हूँ, वर्कशॉप्स करती हूँ। तो वी डू अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी वेयर वी जस्ट गो बैक, तो उनको पीछे चलने को बोलती हूँ। सो वी डू अ बैकवर्ड एक्सरसाइज जिसमें वो पीछे चलते जाते हैं। तो सपोज एक पराठा है, तो पराठा बना कैसे, आया कैसे आपकी प्लेट, नाइस। राइट। तो दे विल टॉक अबाउट कि मम्मी ने बना के दिया। मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो एक स्टेप पीछे, मम्मी, मम्मी ने बनाया, मम्मी ने कहाँ बनाया, गैस पे बनाया। फिर सो यू कैन इमेजिन, ऑल ऑफ यू आर वेरी मैच्योर पीपल। सो एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि कमरा छोटा पड़ जाता है, बच्चे कहते हैं मैम अब कहाँ जाए पीछे। हाँ। फिर मैं कहती हूँ ठीक है, कागज पे लिखना शुरू करो और पीछे चलते जाओ कि कितने सारे रिसोर्सेज को तुमने यूज करा है, उसके बाद तुम्हें जाके एक पराठा मिला है प्लेट पे।
तो वो जब करते हैं तो कहते हैं मैम ये तो पीरियड भी खत्म हो गया, पेपर भी खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा करके लाना है। Yeah. और अगले दिन जवाब मिला मैम वी कुडंट डू इट। मैंने कहा क्यों? बोले कि एक के बाद दूसरा निकल आता था, दूसरे से तीसरा निकल आता था। तो इट्स एन इनफिनाइट, मतलब द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विच आर गोइंग टू प्रोड्यूस इवन अ सिंगल थिंग फॉर Yeah. यू, whether it is a pen, it is a t-shirt, it is a chunni or whatever. So many resources are going. तो सबसे पहले अगर हम रिफ्यूज करेंगे, रियूज तब करेंगे जब हम रिस्पेक्ट करेंगे Respect. इस पूरे प्रोसेस को कि कितने सारे रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं. सो वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. तो द फर्स्ट आर इज रिस्पेक्ट. Yeah. So respect के साथ the moment you will start respecting resources, people, things, helping hands जो उसको बना रहे हैं, so then you will rethink. Second R है rethink. फिर आप जो है रिस्पॉन्ड करोगे. आप कुछ भी चीज आपके पास आई और आपको डिस्पोज करनी है, तो आप सोचोगे कि क्या सच में कोई और विकल्प है मेरे पास इसको करने का. ठीक Yeah. है, मैं क्या इसको फेंक दूं? मेरी टी शर्ट, जैसे आपने कहा टी शर्ट से आप बैग्स बनवाते हैं, सो दैट इज अ रीथिंकिंग प्रोसेस. आपने सोचा कि मैं टी शर्ट को फेंक भी सकती थी, अगर वो फेडेड हो गया तो मैं किसी को दे तो नहीं सकती. अगर दे सकते हैं तो आप दोगे. Yeah. ठीक है, सो दैट इज अ सेकंड स्टेप. एंड रीथिंक इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू वेस्ट, इट कुड बी अबाउट एनी हैबिट. इट Anything. कुड बी अबाउट एनीथिंग, सेविंग एनर्जी. आप स्कूल आपका बगल में है, आपका पापा ने कहा कि चलो मैं कार से छोड़ देता हूँ, बट नो, you said no, I would respect the petrol which is there in your car, I would respect your time, I have my bicycle, I would easily like to drive and enjoy the weather and go. Yeah. Right? तो यहाँ पे भी आपको rethink करा. So respect, rethink, and then the second is redecide. The moment you will go into that process of analyzing things कि भाई विकल्प क्या क्या हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं जिसकी वजह से मैं इस रिसोर्स को सेव कर सकता हूँ या मे बी उसको बेहतर यूज कर सकता हूँ. सो देन यू विल रीडिसाइड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद इट. राइट, पहले जो डिसीजन था वो चेंज होगा. तो Mhm. यू विल मेक अ सेकेंड चॉइस. यू हैव 4 or 5 चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ यू. You will know कि which choice will be the best choice relatively as compared to the first choice you were about to make. तो rethink will help you redecide. ये कचरे की बात अगर हम करें, तो अगर हम कोई पैकेजिंग अमेजोन से हम बहुत सारी चीजें, आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग इतना बढ़ गया है, ई शॉप इतना, ई कॉमर्स इतना बढ़ गया है. सो एवरी डे ब्लिंकिट इज गिविंग एवरी मिनट अ न्यू पैकेट, a Yeah. new envelope or brand new envelope with lot of printing. I'm taking the name very very consciously. Of So course. sometimes I feel when they are doing home delivery, why can't they just give it in a bucket, in a basket or something, and we can easily pick up all the items we need. What is the big need to give that in brown envelope? कोई एक चीज भी मंगाता है तो भी पूरा ब्राउन एनवलप बड़ा सा. हम 10 चीज मंगाते हैं तो पीपल हु आर ऑर्डरिंग दे ऑल्सो नीड टू थिंक ट्वाइस. True. कि आपको जस्ट कन्वीनियंस है, दैट डजंट मीन कि आप हर 5 मिनट में एक बार आपने एक मिल्क का पैकेट मंगा लिया, फिर आपको आधे घंटे बाद याद आया कि चलो ये भी जरूरत है, तो आपने आधे घंटे बाद फिर से ब्लिंकिट को कुछ बोल दिया लाने के लिए. ब्लिंकिट तो लाएगा, इसका तो काम है. राइट, एंड दैट इज व्हाट इज द यूएसपी, दैट वी डिलीवर इन 2 minutes टू यू. राइट, नॉट इवन 2 minutes sometimes. So that is where all of us as stakeholders, as consumers, as producers, as generators of waste and generators of, as polluters, we have to think twice. We have to respect, we have to rethink, we have to redecide about our choices. And from there, we come to refuse. जब हम रीडिसाइड करेंगे तो हम कहीं ना कहीं कुछ चीजों को रिफ्यूज करेंगे. वो हमारी एक्स्ट्रा पैकेजिंग हो, वेस्टेज हो रही है, जहां पे भी हमें लग रहा है वेस्टेज हो रही है, सो देन वी कम टू द फोर्थ आर विच इज रिफ्यूज. सो दैट इज वेयर वी हैव टू कॉन्शियसली टेक अ कॉल, कॉन्शियसली डिसाइड कि नो, वी हैव टू स्विच. इतने सारे कॉस्मेटिक्स हैं, इतने सारे डिओड्रेंट्स हैं, फेस वॉश हैं, दुनिया भर की तमाम चीजें हैं. ओवर 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 एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सेलिब्रिटीज हैं, वो सारी चीजें ऐसे प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो कितना यूज करते होंगे वो. सो देर इज सो मच, लाइक एवरीथिंग इज सो इंटरकनेक्टेड. सो समटाइम्स आई रियली वंडर कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन लोगों से जो हमारी लाइफ में बहुत मैटर भी नहीं करते. राइट, but still we get so influenced by them just because they are big names somewhere in the Bollywood or the Hollywood. And why can't they also promote some things which is more Yeah. more like earth friendly, something which can really take care of our health and Yeah. the health of the planet. Yes. तो रिफ्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग रिफ्यूज करें, कहीं पे पॉज करें, सोचें. सो दैट इज आवर फिफ्थ आर. फर्स्ट वाज रिस्पेक्ट, सेकंड वाज रिस्पॉन्ड, थर्ड वाज रीथिंक, फोर्थ वाज रीडिसाइड, एंड फिफ्थ इज रिफ्यूज. और रिफ्यूज के साथ ही रिड्यूस भी जुड़ा हुआ है.
कि जब हम सोचेंगे, चॉइसेस होंगी हमारे पास, तो हम धीरे धीरे अपने कंजम्पशन पैटर्न्स को चेंज करेंगे, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएंगे कि हम जितना यूज कर रहे हैं, जितना हम उपभोग कर रहे हैं, उसमें भी क्या कोई कमी ला सकते हैं हम। हमारे पास हजारों कपड़े हैं, तो क्या अब हो गया ना काफी, अब अभी भी वार्डरोब भरनी है क्या रोज नए कपड़े खरीद के? ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें रिड्यूस भी करना है, इट कुड बी टू एनी रिसोर्स, वेदर इट इज इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और एनीथिंग। सो देन वी कम टू रिवाइव। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आवर विच आई फील, क्योंकि हमारे जो पूरा एक संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति कह लीजिए, या बहुत सारे और भी कल्चर्स की मैं बात करती हूँ। इट्स नॉट कि वेस्टर्न कल्चर कुछ खराब है और एनीथिंग। आई रियली फील हमारे जो साउथ एशियन कल्चर्स हैं, जापान, चाइना एंड अदर, वियतनाम, इंडोनेशिया, तो वहां पे जो पूरा हमारी संस्कृति थी ना, इट वॉज वेरी मच सस्टेनेबल, आई वुड से। फ्रॉम Yes. द अर्ली टाइम्स वी वर वेरी अर्थ फ्रेंडली, वी वर वेरी सिंपल, बट वी वर वेरी कॉन्शियस एंड वी वर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। Yeah. वी नेवर यूज टू जस्ट थ्रो थिंग्स, मतलब यूज एंड थ्रो वाला कल्चर था ही नहीं बिल्कुल। बिल्कुल। हर चीज को हम बार बार रिपेयर करते थे, रिवाइव करते थे, रीयूज करते थे। ये तीनों आर तो हमारे हमेशा हमारे साथ थे। बिल्कुल। बट ओवर द इयर्स हमने उसको छोड़ दिया। हमने रिपेयर करना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। रिपेयर कल्चर हैज कम्प्लीटली वैनिश्ड, बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल एट द टच ऑफ द स्क्रीन। Green. आप बस स्क्रीन टच करिए, तुरंत आ जाता है। तो आपको सोचने का मौका ही नहीं देता, अगर मेरा कुर्ता जरा सा सिलाई मेरी फट गई है, तो क्या मैं जाके इसको स्टिच कर लूं तो ठीक हो जाएगा? नो, क्या जरूरत है, नया कुर्ता आ जाएगा ना। Yeah. तो दैट इज द पॉइंट कि रिवाइव, रिपेयर और फिर से मतलब रिस्टोर करने की जो टेंडेंसी थी, वो हमारे अंदर, माइंडसेट हमारा कंप्लीटली चेंज हो गया है। एंड आई थिंक देर इज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, मटेरियलिस्टिक हम लोग बहुत ज्यादा हो गए हैं, कंज्यूमरिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है। इट कुड बी कि इकोनॉमी को ड्राइव करना है तो ऑब्वियसली कंज्यूमरिज्म बढ़ाना पड़ेगा, बट समहाउ आई फील दैट इट्स अ विशियस सर्कल, and Yeah. we have to think as adults, as individuals, with the right intellect, with the right emotions. We have to really take a pause and think about all these things. And circularity को build up ऐसे ही नहीं हो जाएगी। circularity build up, we have to make a conscious effort to define circularity in our own life first, कि हम कितना circular हो पा रहे। So that is how repair culture is very important, and Prithvi Innovations is very seriously working on this. So we everything that we do is a part of the repair. तो हम लोग बहुत चीजों को वेस्ट नहीं करते हैं, फेंकते नहीं है। फेंकने से पहले 10 बार उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, रीयूज, चाहे वो कपड़े हो, फर्नीचर हो, शूज हो, फुटवेयर हो, एनीथिंग, बुक्स हो, स्टेशनरी। और अनफॉर्चुनेटली, if I talk about the education system also, I would like to make a point here, Yes, because I understand you. unfortunately पहले जमाने में हम लोग बुक्स कितना शेयर करते थे। सीनियर्स जो थे ऑटोमेटिकली अपने जूनियर्स को अपनी बुक्स ला के दे देते थे, और बिल्कुल। जूनियर्स को इंतजार रहता था कि कब बड़े भैया या बड़ी दीदी आके मुझे अपने, और हम लोग कितने चाव से उन बुक्स को पढ़ते थे। राइट, हमें जरा भी शर्म नहीं आती थी, ना उन्हें आती थी। तो काफी रिसोर्सेज हमारे वहां पे भी बचते थे। बट अब वो कल्चर ही चला गया। एवरी ईयर द स्कूल्स आर चेंजिंग द बुक्स, पूरा सिलेबस ही चेंज कर देते हैं, मतलब पूरा बुक्स, पब्लिकेशन, सब कुछ बदल देते हैं। Why? Such a huge wastage of books, stationery. So मतलब अगर खोलने लगे पेंडोरा बॉक्स तो बहुत कुछ निकल के आएगा। So what I'm trying to say is कि ये सारी चीजें, everybody has to really think, whether they are educational institutions, whether they are corporates, whether they are media people, everybody has to just do a little introspection. और अपने अपने एरिया में हम लोग घर के लोग हैं, मतलब इंडिविजुअल्स हैं, तो मदर्स हैं, डॉटर्स हैं, फीमेल्स हैं। So I think female has a very strong role to play. I really feel that. Or as females, we can really not only do these things first ourselves, but अगर conviction के साथ करेंगे, so I'm sure lot of people will definitely get motivated and influenced by this. तो Yeah. चलते हैं जल्दी से, 15 में कवर कर लूँ जिससे आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है। तो रिपेयर, रिवाइव हो गया, फिर रीयूज आ गया उसी के अंदर, कि कैसे हम रीयूज करें। इसी से जुड़ा हुआ अगला आर है रीपर्पस। It sounds a little similar to the reuse thing. तो repurpose has a new dimension altogether, कि जो चीज हमारे लिए हो सकता है वेस्ट हो गई, हम फेंकने वाले हैं, बट अगर हम उसको एक इनोवेटिव करके अपसाइकिल कर दें, तो उसका पर्पस ही हमने बदल दिया, हमने उसको नया पर्पस दे दिया। राइट, सो वी हैव लॉट ऑफ, आई वुड लाइक टू जस्ट शेयर लिटिल थिंग्स दैट वी इनोवेट। यू कैन सी दिस कैन बॉक्स। Yeah. तो अभी सेव द फ्रॉग डे था, तो वी कन्वर्ट ऑल द ब्यूटीफुल कैंस एंड वी कन्वर्ट देम, मेक देम ब्यूटीफुल प्लांटर्स, एंड वी मेक देम ब्यूटीफुल पेंसिल होल्डर्स, पेन्स। तो आई एम जस्ट शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स। हम लोग अक्सर चाय पीने जाते हैं, सो दीज आर अगेन
So everything we have repurposed, renovated. So another R is renovation, redesigning. You can call them one or you can call them two. So renovating things, coming up with new designs. So these are all चाय के कुल्हड़ जो इधर उधर जो मैंने बीने उधर उधर से राइट। और क्यों बीने हैं? इसलिए कि मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि इतने अच्छे कुल्हड़ हैं यार, क्यों फेंका हुआ है? Yeah. इसको तो कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। सो दीज आर द कुल्हड़्स एंड दिस आई थिंक यू माइट, ये तो आप पहचान ही रहे होंगे, ये क्या है? I think hair clip ना? हेयर क्लिप। ये भी टूट गया था अभी कल परसों, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि ये तो बड़ा अच्छा की होल्डर बन सकता है। तो इसमें छोटी सी कलाकारी हमारे टीम मेंबर ने करी और हम लोग ने इसको, अब ये की होल्डर बना के आप कुछ भी इस पे टांग सकते हो, कपड़े के थैले भी टांग सकते हो, कुछ भी टांग सकते हो, आप मंदिर में रख सकते हो, कहीं भी कार की चाबियां टांग दो। बहुत तो दिस बढ़िया। इज अनदर थिंग। अब ये पेपर है जो बहुत वेस्ट होता है, सो वी आर जस्ट मेकिंग पोस्टर्स आउट ऑफ दिस। Mhm. और पेपर से बहुत कुछ बनता है, पेपर क्राफ्ट, सो वी डू Yes. लॉट ऑफ अमेजिंग वर्क पेपर क्राफ्ट। तो ये सारा रीपर्पस, रिनोवेशन, हम रिस्टोर कर रहे हैं, रिप्लेनिश कर रहे हैं। सो दीज आर द नेक्स्ट आर्ट। और इसी के साथ जैसे बहुत सारा घर में काम चलता है, फर्नीचर का काम हो रहा है, तो बहुत सारे बोर्ड्स जो है वो फेंक दिए जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में। सो दिस वी हैव जस्ट डन अ मंडाला आर्ट। सो दिस Wow. नॉट ओनली गिव्स पीस and happiness, but it also like just gives a new purpose to this piece of board which was Beautiful. about to be thrown away, right? So these are just few examples। एक में और है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा है। ये अभी हमारी फैमिली में, ये मेरा बेटा जब बहुत छोटा था, बड़े मन से उसके लिए खरीदा गया था। हाँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये साइकिल थी, ऐसे चला था, बट इसका बेचारे का सर गायब हो गया, राइट? सो द हेड इज मिसिंग। तो मैंने देखा कि एक दिन हमारा जो ब्लू गार्बेज बैग है उसमें इसको डाला हुआ था, मेरे किसी ने, मतलब हस्बैंड ने या इसने भी। तो मैंने अंदर हाथ डाल के उसको बाहर निकाल लिया। मैंने कहा ये तो अच्छा खासा है, इतना प्यार से खरीदा था, इमोशनल वैल्यू भी थी नो डाउट, बट मुझे लगा कि ये वेस्ट नहीं करना है। अब इसका सर नहीं है, तो एनी आइडिया यू ऑल ऑफ यू कैन सजेस्ट, क्या कर सकते हैं इसका? सर के लिए क्या किया जाए, बताइए जल्दी से कमेंट्स में डालिए। तो Smile, हमने थोड़ा इनोवेट किया। smiley ball हाँ डाल जल्दी सकते हैं जल्दी आप पर। डालिए। अपना सर तो नहीं लगा सकते यहाँ, तो जल्दी से बताइए। ये तो ना जो व्हाट कैन छोटे वी डू छोटे एनी? बॉल्स होते हैं ना, वो डाल सकते हैं, जो बॉल फट जाते हाँ, हैं वो डाल पिंक सकते पॉन्ग, हैं, हाँ टेनिस पिंक बॉल, बॉल बॉल पेंटिंग डाल बॉल। सकते हैं, या पिंक पॉन्ग बॉल डाल सकते हैं। हमारे जो एल्यूमिनियम फॉइल होते हैं, अक्सर हम लोग एल्यूमिनियम, उसको भी ना यूज करें आप लोग, तो दैट इज माय लिटिल सजेशन। इफ यू कैन स्टॉप यूजिंग द मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग एंड एल्यूमिनियम फॉइल, उसकी जगह हम कपड़े का अपना Yeah. नैपकिन बना लें। टिफिन में भी बच्चों के लिए वो रख सकते हैं हम, अपनी रोटी रखने के लिए भी हम उस नैपकिन को। तो इसमें हमने एल्यूमिनियम फॉइल को ऐसे करके खूब क्रश करके उसका गोला बनाया, क्योंकि पिंग पोंग बॉल मिल नहीं रही थी। हाँ. और उसके ऊपर थोड़ा सा क्रोशिया किया। अभी ये इनकम्प्लीट है, तो अभी ये बहुत जल्दी इसका सर इसको वापस मिल जाएगा। सो वील डू सम इनोवेशन एंड दिस विल बी रिस्टोर्ड। एंड वंस इट इज रिस्टोर्ड, इट बिकम्स एन अगेन अ टॉय टू प्ले विद, एंड Yeah. वी कैन गिफ्ट इट टू। और एक लास्ट ये दिखा रही हूँ, ये आप लोग पहचान पा रहे हैं? Yes, not बांधा हुआ cushion cover or something, right? हाँ, तो ये भी पट्टा टी या शर्ट से कुछ कुर्ता। कवर। Yes. हाँ, और ये स्टोरेज बन गया है। ये स्टोरेज है, ये अलमीरा है, मूवेबल अलमीरा। ओके, उसके एंड यू अंदर क्या कांट है? गेस, चिंदी? इसके अंदर सरप्राइज है। इसके चिंदी? अंदर जो भी आपके विंटर के मोजे मोजे और ग्लव्स और जो सारी चीजें अब आपके लिए जरूरत की नहीं है, आपने इसमें पैक कर दिया है। और इस पैक करके अब आप इसको कुशन की तरह कहीं भी यूज कर लीजिए। Very और nice. जब आपका विंटर जाएंगे फिर से आप खोल के, तो अगेन एंड अगेन यू कैन रीयूज अगेन एंड अगेन, एंड इट्स नॉट टू बी थ्रोन अवे। तो Very दिस इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट 15 आवर्स। और लास्ट में ऑफ कोर्स आता है हमारा रिसाइकिल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो once again I'll quickly repeat: respect, respond, rethink, redecide, refuse, then reduce, then reuse, revive, repair, and then repurpose, renovate, and reallocate or redistribute। जो चीजें आपके लिए नहीं काम किया, maybe you can distribute to a lot of people, right? Replenish and recycle, and finally, when you're doing all this, you feel so happy, so rejoice. Rejoice is the final R. It gives us that very happiness and nice. satisfaction. So Very nice. these are just, so this is the philosophy on which Prithvi Innovation works, and we try to follow it as much as possible. It's very close to our heart. And thank you for giving us this opportunity to discuss it in detail here. It's there on our website also, so anybody who wants, they can just go on our website and you can Yes. just do a little exploring. अब मेरे पास एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है
मैं अपने या आप श्योर। आपके पास लखनऊ कैसे ला सकती हूँ? आप क्या क्या कैसे ला सकते मैं हो? मैं वहां पर आपके साथ में ये सब करना चाहती हूँ। आई हैव नेवर बीन टू लखनऊ, बट द डे आई कम टू लखनऊ आई एम स्ट्रेट अवे कमिंग टू योर प्लेस। या श्योर, लेट मी बुक अ टिकट फॉर यू, कब आ रहे हो बताओ? अभी नहीं, बट ओ माय गॉड, आई जस्ट लव दिस बिकॉज मुझे तो ये करना इतना पसंद, ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं मिरर से सुन रही हूँ ये सब बातें कि हम भी ऐसे करते हैं। तो Oh, मैं भी ऐसे करती हूँ। सो ओ आई एम सो हैप्पी टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विथ यू। आई एम सो हैप्पी। वाओ। थैंक यू सो So मच। we need to multiply and clone Anuradhas and Anujas who love to do this best out of waste. And then I think कुछ बचेगा नहीं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहेगा। बिकॉज हम लोग वेस्ट और बोलते बहुत डांट भी पड़ती है अनुजा, हैं। बहुत डांट भी सुननी पड़ती ओ है, घर माय को कबाड़ा गॉड। घर बना देते हैं कई बार। और पूरी फैमिली मेंबर्स कहते हैं अपना अलग ले जाओ ये सब जो कबाड़ है ना। So आई नो। sometimes it is quite a challenge to make them understand that okay, just give us some time. I'm trying to reuse it, and so I think I totally agree. It's quite challenging also. It's not all that simple and easy at times. मैं तो चाहती हूँ कि मुझे कोई बहुत ही ऐसे बिग फिलांथ्रफी बोले कि तुम्हें क्या चाहिए। मैं बोलूंगी मुझे एक ऐसा पेंशन चाहिए जो पूरा खाली है, जिसमें कुछ नहीं रखा, वो मुझे दे दो। मैं उसके हर कमरे में एक एक अलग अलग चीज बनाऊंगी। मेरा एक एक लाइक काइंड ऑफ म्यूजियम रहेगा जिसमें आप दुनिया के लोग अपना अपना सामान ला के उधर डाल सकते हैं। एंड आई हैव सम प्लेस टू कीप इट, दैट Yes, वर्कशॉप, आई वुड absolutely. वांट दैट। बट जगह इज सच अ बिग प्रॉब्लम, वो ही नहीं कहीं से मिल पाती है। मैंने लाइक पलंग Very के नीचे, लॉफ्ट में, स्टोर रूम में, कहाँ कहाँ रखा है। एंड एवरी नाउ एंड देन आई एम लाइक ओके ओके, नाउ आई वोंट देन समबडी कॉल्स मी, दीदी हमारे पास ये बहुत जमा हो गया, किसको दें? मैंने अच्छा तुम मुझे लाके दे दो फेंकने से अच्छा। So I totally understand, and oh my God, it's so beautiful. So हमें ढूंढना होगा किसी दानवीर कर्ण को जो हमको एक जगह दे दे, जो हम इसको एक वर्कशॉप बना ऐसे सके। दान में कौन बहुत है जो गार्बेज देने को हमेशा तैयार रहेंगे आपको, हाँ, क्योंकि उनको तो देखना है ना। बट वो तो आई एम श्योर देखना ये सबका कॉमन चैलेंज है कि जगह होना चाहिए। एंड लोग सोचते हैं कि कचरा है तो इट डजेंट नीड, लाइक यू सेड, प्लेटफॉर्म के ऊपर रख के उसको एक समता का लेवल देने का वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप उसे पैर के पास रखना चाहते हो, आप ऐसी जगह रखना चाहते हो जहां पे वो मेन स्ट्रीम में दिखाई ना दे, गेट लॉस्ट वाले जगह पर, है ना? लेकिन वही राइट। हमारा दृष्टिकोण दिखाता है कि हम उसे कैसा ट्रीट कर रहे हैं। सो दैट एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट आई। यूज एंड थ्रो, सेम पर्सन विल ट्रीट अदर पीपल ऑल्सो। जब उनने उनका काम निकाल लिया, यूज एंड थ्रो, दैट रिलेशनशिप वो बॉन्ड बनाने में सब असक्षम हो जाएंगे धीरे धीरे, और आई थिंक हो रहे हैं। दैट इज आई वी सी दैट मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस हैं, ये सब वहीं से आते हैं। सो I totally love what you're doing, and okay. Ajit ji says that somebody is in BBAU Lucknow, Venkatesh Datta, so we can all get in touch with them. Um, यस यस, नो हिम वेरी वेल, ही इज अ वंडरफुल पर्सन एंड अ nice, वेरी लाइक मैम बोलते हैं उनको। उन्होंने बहुत काम करा है नदियों के ऊपर, और खासतौर से लखनऊ में वो गोमती नदी के रिवाइवल को लेके, और गोमती से रिलेटेड जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, हमारी जो सहायक नदियां होती हैं, तो yeah, उनका काम तो इट्स हेड्स ऑफ टू हिम। अमेजिंग, very. अमेजिंग पर्सन, अ वेरी हम्बल एंड अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। And I think I learned so much from him, and he's always there whenever we invite him for our programs and cleanup drives. तो Wonderful. बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो मैं नेक्स्ट आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अब आपने ये एक्सपीरियंस किया है इतने समय में, और आप देख रहे हैं कि कुछ जगह चेंजेस आ रहे हैं, कुछ जगह अभी भी वैसे के वैसे हैं। आपको क्या लगता है कि हमें और क्या करना चाहिए, या हम और क्या कर सकते हैं जिससे हम इस चेंज लाने की प्रक्रिया को थोड़ा सा स्पीड अप करें? बिकॉज कभी कभी ऐसा सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है कि अब इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। यस एब्सोल्युटली। तो आई थिंक दैट्स वेरी ट्रू। तो अर्जेंसी तभी आएगा जब हमारे माइंडसेट में वो परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब तक हम, वही बात है कि जब तक हम मतलब रिसोर्सेज को, एक हमारे पास एक वो है ना कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं।
राइट, दैट गिव्स अस अ सेंस ऑफ कि मतलब एक सुप्रीमेसी का सेंस जो हमारे अंदर है ना, कि मतलब हमारे कंट्रोल में है सब कुछ, हम अगर जो भी एंटाइटलमेंट। चाहते हैं हमें मिल जाता है। हाँ, तो और ये हम नहीं सोच रहे कि वो जो मिल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कितनी मेहनत के बाद वो मिल रहा है। तो वो हम पूरा लाइफ साइकिल तो सोचना और देखने की बात तो अलग है। हमारा पर्सपेक्टिव खाली अपने यूज और कंजम्पशन तक ही रहता है, कि हमको आज जरूरत है, हमने उसको यूज करा, फिर हमने उसको फेंक दिया। तो आई थिंक ये चेंज तभी आएगा जब हम हमारा थोड़ा सा नजरिया चेंज करने की कोशिश करें, और हम लोग बहुत ज्यादा मैं कहूंगी माइजर बढ़ना पड़ेगा हमें। माइजर बनना पड़ेगा, कंजूसी कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी, तब तक हम कंजूसी या सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन की बात होती है ना, तो ये हमारे जो, अगर हम योग की बात करें, तो हमारे अंदर जो एक नियंत्रण वाली जो फीलिंग थी ना, वो धीरे धीरे कम हो गई है। अब हम सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ कंट्रोल बहुत कम होता जा रहा है। और स्पेशली जो हमारा ग्रेटिफिकेशन है, हम ग्रेटिफिकेशन इन चीजों से ढूंढते हैं। तो जब तक हमारा माइंडसेट और हमारी ग्रेटिफिकेशन हमारी कमोडिटी से रिलेटेड होगा, या तो हम हमेशा कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे। जब बिल्कुल। तक हम ग्रेटिफिकेशन के मायने नहीं बदलेंगे कि ग्रेटिफिकेशन किन चीजों से, आप कुछ किसी की मदद करके भी आपको जो खुशी मिलेगी वो कोई चॉकलेट या कोई कोल्ड कॉफी पीने से शायद नहीं मिलेगी। तो आई थिंक इट्स ऑल वेरी इंटर रिलेटेड, इट्स नॉट वेरी फिलोसफिकल, इट इज वेरी सिंपल, कि यू हैव टू जस्ट सी कि आपकी हैप्पीनेस कहाँ से आ रही है। और हैप्पीनेस कभी भी बाहर से नहीं आती, इट्स ऑलवेज इनसाइड यू, राइट। एवरीथिंग विच इज इनसाइड यू हैज टू बी मैनिफेस्टेड, राइट। बिल्कुल। सो हैप्पीनेस इज इनसाइड यू एंड इट विल कम फ्रॉम यू ओनली, नॉट फ्रॉम समबडी एल्स, नॉट फ्रॉम सम अदर थिंग्स। तो ये चीजें एम्पलीफाई तभी होंगी, रेप्लिकेट तभी होंगी, जब हमारी बॉन्डिंग भी और स्ट्रांग हो एक एक दूसरे के साथ, और हम चीजों को खाली कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखें, उसके अंदर एक एक सोल भी देखें, कि उसके अंदर भले वो एक कागज का टुकड़ा है बट इट ऑल्सो हैज अ सोल। तो पर्सनलाइज करना पड़ेगा चीजों को, समझना पड़ेगा कि वो कागज का टुकड़ा खाली कागज नहीं है, बहुत सारी चीजें उसमें मिली। तो ये सारी चीजें करके, और मुझे लगता है मीडिया का, गवर्नमेंट का, या कॉर्पोरेट हाउसेस का, और स्पेशली जो पीपल पावर में है, जो जिनकी अथॉरिटी है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की बात करें, सो आई थिंक दे कैन डेफिनेट बी ड्राइवर्स ऑफ चेंज इन द रियल सेंस। So they can start taking up these issues in a real sense, not just for the sake of any commercial or anything, but actually practice some of the things in their life and talk about it. ठीक है, या बोस्ट करिए आप उसका प्रचार करिए, बट इट इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज आपको देख के बहुत लोग इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। मैं कुछ कहूंगी तो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा मे बी, राइट, और आप कुछ कहेंगे तो थोड़े हो सकते हैं, नहीं राइट। सो नहीं दैट इज द तो इसके so लिए that हमारे is पास the रजत, नाउ प्लीज यू नीड टू मेक सम फिल्म्स जिसके हाँ, अंदर ये तो ये हमारे, बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है ना। सो या या आई टोटली एग्री विथ यू, बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। जरूरी है। मीडिया को भी बहुत रिस्पॉन्सिबल, मतलब मीडिया जर्नलिज्म की बहुत जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जर्नलिज्म है ना, वो भी बहुत, आई एम सॉरी टू से, बट हम लोग अच्छी चीजों को हाईलाइट कम करते हैं। सारे न्यूज आइटम्स आप वही देखेंगे जो नेगेटिव हैं। मतलब कुछ भी अच्छा अगर हो रहा है किसी कॉर्नर में, तो उसको कोई कवर करने नहीं जाएगा। बट आपको सारी न्यूज मिलेगी कि यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ सुसाइड हो गया, यहाँ बस जल गई। So that is important to report, because that will help us know ki what is going wrong in our societal, in the societal setup. But definitely the media also should devote a page for some real good stories, real ground actions which are taking place locally, globally and regionally. तो मुझे लगता है मीडिया भी अगर थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो, और इन चीजों को खाली बातें ना करे कॉन्फ्रेंस हॉल में, कि सस्टेनेबिलिटी, ESG एंड ऑल दैट, Totally. so we should not just keep talking in the boardrooms and conference rooms. We should actually come down to the ground and actually try to see whatever little we can do. तो कॉर्पोरेट क्या कर सकता है, अपने जितने भी टीम मेंबर्स हैं, अपने जितने भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनके अंदर ये कल्चर इनबिल्ट कर सकता है। कहाँ से टॉप मैनेजमेंट की Yeah. रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस एज अ कल्चर इंट्रोड्यूस करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, दैट यू हैव टू फॉलो दिस, and not just out of force, but give them an conducive environment where they can think about it. They can come up with their own ideas and innovative solutions to the problem of paper wastage, which is getting generated in the office, to Yeah. the problem of food wastage, which is happening in the canteen, in the mess. So I think everybody should get involved and not think कि ये तो उनकी प्रॉब्लम है। ऑफिस है, ऑफिस में कैंटीन है, खाना मैं खाने जाता हूँ, काम करता हूँ,
अब वो खाने का कचरा वो ऑफिस कैसे फेंक रहा है उनकी प्रॉब्लम है, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। तो वी हैव टू ओन दैट प्रॉब्लम, वी हैव टू रियली पहले तो अपने ही कचरे को ओन कर लें, अपने घर के ही कचरे को। तो वही बहुत बड़ी पहल है। तो अगर सब हाउस होल्डर्स, और मुझे लगता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। बिल्कुल। अगर हम हमेशा एक्सपेक्ट करते रहेंगे कि गवर्नमेंट ही सब कुछ चीजों को करे, गवर्नमेंट शुड डू द basic thing, provide the infrastructure, provide the process, provide us the support and the, I would say, promotional help to help us make it happen। हर कॉलोनीज में ये रूल्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर दिया हुआ है, ये एवरी वेस्ट जनरेटर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में ये डिफाइंड है बहुत क्लियरली कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक से रखना हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। यस। It is very much enshrined in the constitution, right? But nobody talks about duties. We are always talking about our rights. So that is another point. So we Yeah, have to really get we enlightened. we pay taxes. That is the Yeah, that pay is the taxes. वो सबसे बड़ा तो मुझे मिलता है, एंड आई एम लाइक, अरे यू पे टैक्सेस, इसका मतलब तुमने खरीद नहीं लिया है सब कुछ, बस। नहीं, और गंदा मतलब सड़क है, पब्लिक सड़क है, तो आप कहीं भी जाके स्पिट कर दीजिए, कहीं भी जाके अपना कचरा अपनी गाड़ी के अंदर नहीं रखोगे क्योंकि गाड़ी आपकी है, राइट, वो साफ रहनी है। बट आप सड़क आपकी नहीं है, गवर्नमेंट की है या और लोगों की है, तो आप फेंकिए वहां पे आराम से। तो मतलब वो जो मेंटल एक वो है ना, आई समटाइम्स फील कि एवरीबडी नोज, इट इज नॉट समथिंग, हम लोग कोई ज्ञान नहीं यहाँ पे बांट रहे हैं। एवरीबडी नोज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? वी आर जस्ट डिस्कसिंग कि व्हाट बेसिकली हिंडर्स देम, क्यों, मतलब कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आती है। तो इट्स नॉट, वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, सो वी आर वेरी ओपन टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्यों वो नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। तो हमें एक पॉजिटिव अप्रोच और एटीट्यूड लेके उन लोगों को इन्वॉल्व करना होगा, उनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी, और उनके भी पर्सपेक्टिव को देखना होगा। अगर कोई फेंक रहा है तो उसका पर्सपेक्टिव क्या है, बिल्कुल। और उस पर्सपेक्टिव को समझ के, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, राइट? अगर हम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम खाली अपना ज्ञान नहीं बांटना है, हमें हमें ये भी देखना है कि अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो क्यों कर इधर रहे हैं? उसका कोई प्रॉब्लम होगा, हाँ कोई प्रॉब्लम होगी। अकेला है वो, अकेले जो हॉस्टल्स में बच्चे रहते हैं, सो दे डोंट हैव दो सो मच ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम that they can take care of their garbage on their own, right? So we have to understand their perspective also, their side of things, and put ourselves in their shoes। तो जो भी पार्टीज अगर कचरे को लेके या कोई भी चीज वेस्ट कर रही है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज गेटिंग वेस्टेड फर्स्ट, and बिल्कुल। then we have to come up with some common understanding and with some common solutions which are practical, feasible। और कॉरपोरेट का, मीडिया का और सभी स्टेक होल्डर्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। एंड आई थिंक अगर सारे कॉरपोरेट बड़े बड़े जो हमारे बहुत सारा काम कर रहे हैं वो लोग, आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉट डूइंग इट, लॉट ऑफ पीपल, एचसीएल है, टाटा मोटर्स इटसेल्फ, टाटा, तो लाइक आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर Yeah. श्री रतन जी टाटा। ही इज नो more with us, but his life was full of such inspiring actions and such inspiring words। So I think we can learn so much from all these great leaders, and they are the real leaders who will actually guide us। And बिल्कुल। similarly we go in golden time, आप कबीर दास जी को देखिए, I really love कबीर दास जी, कितने सिंपल थे और उनकी बात आज भी इतनी रेलेवेंट है। उनके जो भी दोहे हैं, Yeah. हर दोहे में इतनी डेप्थ है, इतनी इतनी मतलब लाइफ की लर्निंग है, लाइफ स्किल्स हैं। और चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे हम सर्कुलैरिटी की बात करें, कुछ भी बात करें, चाहे हम कल्चर और रिलीजन की बात करें, चाहे हम सेकुलरिज्म की बात करें, एवरीथिंग इज सो इंटरवोवन टुगेदर इन दोज जस्ट टू लाइन्स, टू सिंपल लाइन्स, सो मच ऑफ दैट। तो कबीर दास जी को देखिए, आप उनकी लाइफ देखिए, एंड सो मेनी ग्रेट लीडर्स, लिटरेचर पर्सन्स, इतने सारे ऑथर्स हैं हर फील्ड में, हमारे बहुत इंस्पायरिंग लोग हैं। विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, ही गेव द रियल रीजन फॉर यूथ टू थिंक ट्वाइस, कि किसी भी चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, थिंक लॉजिकल हो, फाइंड आउट द रीजन एंड सीक द ट्रुथ। बिल्कुल। So I think there are so many amazing examples in front of us, and they should always inspire us। बिल्कुल। So I think it can be replicated, it can be upscaled, and it can be multiplied, provided this voice reaches out more to more and more people, and everybody just pauses for a time and tries to rethink and redecide about so many things। या वी विल डेफिनेटली, वील कीप ट्राइंग आवर बेस्ट। हम जो भी कर सकते हैं, हमें आवाज को एक जगह से दूसरी तक जगह ले जाना है,
एंड आई थिंक जब हम मीडिया की बात कर रहे थे, रजत वॉज ट्राइंग टू से समथिंग। रजत, आप बोलना चाहते हैं? हम सुनना चाहते हैं आपका पॉइंट जो आप उस वक्त बोल रहे थे, बट आई थिंक आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दी। नहीं नहीं, मैं you are asking about making a film, and of course there is a lot of work going in that direction also, not only by us, by others also. We are living in this world where the dynamics of film and what you see on the screen on OTT has changed. I mean slowly we are moving away from a hero heroine based film to a content based film. Nowadays, it's not important what language the film is in. Even a Indian language film in Malayalam is also being seen, or a Mexican film with subtitles also being seen. Its content is now the king. So there is a lot of Yes. work in that way. But coming to the discussion that was done today, I mean, it's hats off, so much of learning. Anuradha, I didn't know that you were so much into it. Hats off to you for doing so much of innovative work. And आई थिंक हमारी स्कूल का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। आई uh, रियली वो कि रहेगा, किसी और का सपोर्ट या कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा तो एक आदमी खुद जंग नहीं लड़ सकता. You always need to have an army around you to do such work. So hats off and all the best to all of you all doing such wonderful work. थैंक यू सो मच रजत। और रजत, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है फिल्म और मीडिया, मतलब ये ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, दो इंडस्ट्रीज हैं कि अगर ये कुछ मतलब अच्छा लेके आएंगे ना, तो वो बहुत मास उसकी अपील होती है, और वो सट्टी लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो बहुत अच्छा कंटेंट आजकल बन बन रहे हैं, लॉट ऑफ गुड फिल्म्स आर देयर। सो वी रियली अप्रिशिएट द डायरेक्टर्स एंड द स्क्रिप्ट राइटर्स हु आर कमिंग अप विद सच गुड स्टोरीज। एंड लाइक अब एनवायरनमेंट जो है खाली एक डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं बनता, इट बिकम्स लाइक अ रियल स्टोरी, एंड पीपल आर एबल टू रिलेट टू इट। देयर आर सो मेनी फिल्म्स जिसकी मैं बात करना चाहूंगी। चाहे हम वो पैडमैन की बात करें, तो उसके थ्रू हम लोग ने भले पैड की, अगर अभी हम बहुत डिटेल में उसको नहीं लेंगे, बट उसमें भी टॉक्सिन्स और पोल्यूशन होते हैं, तो वी हैव टू कम अप विद सम अल्टरनेटिव्स व्हिच आर मोर हाइजीनिक एंड मोर हेल्थ कॉन्शियस। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर आर लॉट ऑफ इंस्पायरिंग जर्नीज एंड स्टोरीज जिनको हम हाईलाइट करके फिल्म बना सकते हैं उनके ऊपर। अभी ज्योतिर्बाई फूले की जो फिल्म आई, आई वंडर इफ हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच्ड इट, राइट? अब हम सो इवन आई देखेंगे वाज सारे। नॉट। अब देखने का सीजन चालू होगा कल से। अब एग्जाम खत्म हो गए हैं। हाँ, बहुत ही हमें। और वो लापता लेडीज अगर आप लोग ने देखी है, वो सच अमेजिंग फिल्म। लापता लेडीज वाज सच अ ब्यूटीफुल फिल्म, सो मेनी इश्यूज टच्ड अपॉन इन Yeah. सच अ सटल एंड सच अ सेंस ऑफ ह्यूमर वाज सो यूनिक। सो आई आई टोटली एग्री रजत कि अगर अच्छी फिल्म्स बने ना, तो बहुत सारा चेंज ऑटोमेटिकली हो सकता है हमारी सोसाइटी में। और हमारे नॉट ओनली स्क्रिप्ट राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, बेस्ट इन दिस काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग। सो True. थैंक यू सो मच। Just like you mentioned in between the conversation that the सबसे पहले चेंज अपने आप में आना चाहिए, राइट? अभी वही पैडमैन में अगर अक्षय कुमार नहीं होता और एक अननोन फेस होता, तो क्या पैडमैन का इतने व्यूज होते? नहीं होता. सो वी ऑल्सो नीड टू चेंज आवरसेल्व्स कि कंटेंट को समझे और फिर उसको देखे. सो दैट हैज बीन पॉसिबल थ्रू द OTT channels that are available now, जिसमें आप घर बैठ के देख सकते हैं, because the demography of the charges and the cost that goes into watching an OTT and on a film at a multiplex is different. Yeah. So आप घर पे बैठे you are searching for content तो आप देख लेते हो, because it does not cost you additional, right? तो आप देख लेते हो, and by the time you are 15 minutes into it, you like the content, and then you binge watch, and you are awake till 2 at night, 3 at night, you have to finish that off, right? And you don't know any of those characters, the history of those characters. उनका नाम फिर आप गूगल करके ढूंढते हो ये कौन है, क्या किया है इन्होंने, correct? So we also need to change ourselves to actually learn to consume content. In Anuja's moderated panel, I said that cinema was developed as a medium to tell stories, and look where we are today. कि बस एक स्टार होना चाहिए, उसमें कहानी ना हो तो चलेगा. So we are in that generation, and we are slightly changing, which is the good sign of it. Definitely we'll see much better world in days to come. Yes. Yes. Yes, Rajat. I And totally-
एक जो आई हैव अ फिल्म प्रोडक्शन बैकग्राउंड, मैं पहले फिल्म प्रोडक्शन में थी, तो मुझे वो बहुत ही ऐसा लगता है, बार बार इट्स लाइक अ गो टू प्लेस कि ये मैं करना हाँ चाहूंगी, ये मैं करना चाहूंगी। तो अब जब मैं नेक्स्ट इनिंग में फिल्म प्रोडक्शन करना चाहूंगी, तो आई वांट टू हैव टू बी कंट्रीब्यूटिंग बाय ग्रीन प्रोडक्शन, कि मैं कैसे वेस्ट रिड्यूस करके लोगों को फिल्म बनाने में मदद करूं। और दूसरा मेरा सपना है कि कैसे वेंसडेज फॉर वेस्ट वॉरियर्स, जो ये पूरी सीरीज है, ये ओटीटी पे जाए, क्योंकि जब राइट। लोग देखेंगे कि तेरे मेरे जैसे कॉमन लोग कर पा रहे हैं, हाँ तो हम भी कर सकते हैं। सो दैट इज बिल्कुल। द बिगर बिगर काइंड ऑफ प्लान। सो जब होगा राइट। तब होगा, लेकिन यस, हमें वो छोटी चीज को बाहर तक लेके जाना है। तो एब्सोल्युटली। और इसी में मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। आई नो द टाइम इज रनिंग आउट, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मेंशन कि हमारा आता कहाँ से जाता कहाँ, अगर ये क्वेश्चन हमेशा अपने दिमाग में रखें, सो देन वी विल बी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट वी आर कंज्यूमिंग, हाउ वी आर कंज्यूमिंग एंड हाउ वी आर डिस्पोजिंग एंड व्हाट वी आर डिस्पोजिंग। और उसके साथ हम लोग ने गुठली बैंक का भी कॉन्सेप्ट लेके 3-4 साल पहले स्टार्ट किया था। तो उसमें भी जैसे गुठलियों को भी हम बिल्कुल सोचते हैं कि अब उसमें कुछ बचा ही नहीं, हमने सारा फल खा लिया, आम सारा चूस लिया। राइट, अब गुठली का क्या होना है, तो उसको भी डस्टबिन में डाल दो। ठीक है, पपीता इतनी सारी गुठलियां होती हैं, इतने सारे बीज होते हैं उसमें, दे आर फुल ऑफ लाइफ वेटिंग टू बी स्प्राउट बैक अगेन। तो गुठली बैंक का भी हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि कैसे हम गुठलियों के अंदर रिस्टोर करें जो लाइफ है, और उसको हम फिर से एक जीवन देने की पहल करें, तो उसको फिर से रिप्लांट करें। तो ये गुठली बैंक का भी हम लोगों का बहुत अच्छा काम रहा है, और अभी भी चलता रहता है हर साल। तो हम लोग हर साल 14,000 1400 से 1500 की गुठलियों को, जामुन है, नीम है, जामुन, लीची, शरीफा, अनार नहीं सॉरी, पपीता, आम, तो ये सारे जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनकी गुठलियों को भी लोगों से भी अपील करते हैं। और जितना हो सकता है, तो अगेन चैलेंज आता है जगह का, तो जगह की प्रॉब्लम होती है कि हम कितनी गुठलियां अल्टीमेटली लगाएंगे। तो हम लोग फिर कंटेनर्स में प्लास्टिक के पॉट्स वगैरह जो पुराने फेंके हुए डिब्बे डिब्बियां होते हैं उनको रीयूज करते हैं। तो मतलब हर चीज को रीयूज करने की कोशिश कर सकते हैं, एक लेवल तक तो कर ही सकते हैं, आगे फिर अल्टीमेटली हमें डिस्पोज करना भी है, तो सही तरीका भी ढूंढे डिस्पोज का। अगर वो अल्टीमेटली लास्ट स्टेज पे पहुंच गया, या फर्दर उसको कुछ नहीं कर सकते आप, अल्टीमेटली आपको फेंकना ही पड़ेगा, तो आप देखिए कि आप उसको मिक्स गार्बेज में मत डालिए। अगर वो रिसाइकिल हो सकता है तो प्रॉपरली, अगर हजार्डस वेस्ट है, कोई बैटरी है, कोई कोई सीरिंज है, तो उसको प्रॉपरली फिर ऐसी जगह डालिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम अभी मिसिंग है, तो सारी म्यूनसिपैलिटीज इतना ध्यान नहीं रख पाती हैं कि वो इतना एक चैनल बिल्डअप कर पाए कि हम हजार्डस वेस्ट को ट्रीट कर पाए। या तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको लेके मुझे काफी कंसर्न रहता है। शीशा टूटता रहता है आए दिन घर में, उसको ले जाने का कोई तरीका नहीं होता। तो अल्टीमेटली सब लोग, मतलब बेचारे जो आते भी हैं कलेक्ट करने के लिए, उनको भी अपने बेयर हैंड से दे हैव टू पिक अप दैट ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस, उसी में डाइपर भी है, उसी में सब कुछ है। तो समटाइम्स इट रियली गिव्स यू थॉट्स टू थिंक एंड मेक्स यू लिटिल सैड आल्सो, कि व्हाई वी एज ह्यूमन बीइंग्स, अपनी डिग्निटी का तो हमें ध्यान है, बट हम उनके बारे में एक पल भी नहीं सोचते कि जो कितने सारे कचरे में जा जाके अपने बेयर हाथों से जाके बीनते हैं कुछ चीजें, शायद वो उनके उनको कुछ पैसे दे जाएं इसलिए। तो आई थिंक देयर आर सो मेनी इमोशंस विच आर अटैच्ड विद कचरा, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग कचरे को ही पूरी तरह समझ के, तो कचरा हमारे जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है और हमको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कचरे के अंदर ये कैपेबिलिटी और पावर है। तो जब हम कंपोस्टिंग करते हैं ना, तो वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है, कचरे का ट्रांसफॉर्मेशन तो अलग बात है, बट आपके अंदर पेशेंस सिखाता है, वो आपको इंतजार करना सिखाता है, आपको सोल्यूशंस ढूंढने की तरफ अग्रसर करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कंपोस्टिंग में तो नेक्स्ट क्या करूं। So I think it's a journey of life. It's not just a journey of kachra. It's a journey of life. It begins with you and it will end with you. या ब्यूटीफुल। एंड आई ऑल्सो वांट कि एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि कंपोस्टिंग करते वक्त आपने जो बोला, जो जो हम सीखते हैं, एक और चीज हम सीखते हैं, होपफुल होना सीखते हैं, कि Correct, हमने ये correct, लगाया है, जरूरी नहीं है हर सीड स्प्राउट करे, लेकिन वो यू यू हैव दैट होप कि वो करे। जैसे हमारे गार्डन में, छोटा सा हमारा भी गार्डन है, लेकिन उसके अंदर पपीता, गन्ना, जो भी चीज है वो सीधे उसमें डाल दी जाती है, और वो अपने आप उग right. जाता है। यू हैव टू जस्ट लाइक, आपने डाल दिया, उसे भूल जाओ, वो अपने आप उग जाएगा। Hmm, तो मुझे काफी बार सोसाइटी absolutely. सुनना पड़ता है कि ये क्या है, तुमने ये उगाया है, वो उगाया है, वो उगाया है, ये ठीक नहीं है। बट लाइक सब कुछ अपने आप ऑर्गेनिकली उग जाता है,
उसको इच्छा है आगे बढ़ने की, लाइफ बढ़ाने की, तो वो हो रहा है। हम अपना काम करते हैं, हम गुठलियां डाल देते हैं, दैट्स इट। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू डू। लाइक जैसे कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। हम छोटा सा फल की चिंता तो करते ही हैं कि हम चाहते हैं साफ हो जाए सब कुछ, लेटर फ्री हो जाए, वो फल की चिंता तो है हिडन, बट फिर भी कर्म तो करते ही जाना है। सो दैट हैज नो अदर ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव। आई एक आई आपने थिंक अभी भगवान की जब बात करी ना, तो मैं बस जल्दी से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम लोग भगवान को मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में सब जगह ढूंढते हैं, जाते हैं और इतने रिलीजियसली वो करते हैं, बट भगवान हमारे चारों तरफ हमेशा रहते हैं। बिल्कुल। और अगर आप भगवान शब्द को ब्रेक करें, राइट, भा इज फॉर भूमि, तो मैं अपने सेशंस में ये जरूर बोलती हूँ कि भगवान, आपने कभी देखा है भगवान को? तो सब लोग कहते हैं नहीं देखा तो नहीं, मंदिर में जाते हैं, मूर्ति में देखा है। बट देन आई से सी ही इज हियर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, ही और शी, जब जो भी आप या कहें, जो भी जेंडर आप कहें। तो देन आई से जस्ट टच द फ्लोर beneath योर फीट, तो दैट इज भूमि, भूमि इज भा, भूमि इज भगवान है। और फिर भा हो गया, फिर हमारा गा हो गया, गा इज गगन। सो आई टेल देम कि लुक अप, योर गॉड इज अप स्माइलिंग एट यू। तो पूरा गगन जो है, पूरा आसमान हमारे भगवान है, राइट। एंड देन वी कम टू भगवा, वा इज वायु, जो हमें हवा, जो हमें प्राण शक्ति दे रही है। तो वायु क्या है? ये तो है जो हमें प्राण हमारे अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, वायुमंडल में भी हैं, और हमारे अंदर भी वही प्राण वायु है। वो चली जाती है तो हम बेकार हो गए बिल्कुल, हमारा शरीर का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान, और ना ऑब्वियसली इज नीड, पानी, जल। तो जल भी हमें, तो मैं वही कहती हूँ कि भगवान इज ऑलवेज अराउंड यू, सो रिस्पेक्ट दैट भगवान। और मंदिर में भी जाइए, मस्जिद में भी जाइए, पूजा करिए पूरी श्रद्धा से, बट देन डोंट शो योर डिसरिस्पेक्ट टू वाटर, टू भूमि, बाय थ्रोइंग गार्बेज हियर। तो भगवान इज always here with us and we can always see him every minute of the day. एब्सोल्युटली। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र सिंह है, जो वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं, भाई जी जिनको बोलते हैं हम सब लोग प्यार से, वो हमेशा ये बोलते हैं, भगवान का जो भगवान, वो ऐसे ही ब्रेक करके हाँ, सबको बताते हैं और बोलते हैं कि जो तुम्हारे पास सामने है, साक्षात है, उसकी इज्जत करो, उसको पूजो, उसकी वैल्यू करो, कहीं और पे मत जाओ। सो नीर नारी नदी, वो तीन के ऐसे स्लोगन लगवाते हैं कि मैं, हाँ, लाइक प्लेज कि हम नीर नारी और right, नदी की right. इज्जत करेंगे। सो एब्सोल्युटली, आई एम सो हैप्पी। ऐसा मुझे लग रहा है हमको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत सारे करने पड़ेंगे आपके साथ, क्योंकि हमारा कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होना चाहिए। आई विल डेफिनेटली, आई वुड लव टू इनवाइट यू अगेन अनुराधा। मुझे बहुत मजा आएगा कि हम और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने आज सिर्फ ऐसे 1-2 लाइन में बोले, लेकिन हम उसके बारे में और डिटेल में कर सकते हैं बात। सो आई एम श्योर आप जब भी अवेलेबल होंगी नेक्स्ट, हम ये करना चाहेंगे। Sure. बहुत ही खुशी होगी। और थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग ने ज्वाइन किया आज। क्वेश्चन आंसर के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन वी विल डू दैट। और जब मैं ये पोस्ट करूंगी तो आप उसमें जितने मन चाहे क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा, हम वो क्वेश्चन आंसर के राउंड के लिए एक और बार एपिसोड करेंगे, इफ दैट्स ओके विथ यू। I would also like to convey my sincere thanks to all the beautiful participants. मंजरी भी मुझे दिख रही है, थैंक यू सो मच मंजरी, थैंक यू सो मच। और भी बहुत लोगों को शायद मैं मतलब ऐसे नहीं जानती, बट थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर वेरी वैल्यूबल टाइम and coming here to be with us, just to be a part of this little conversation. I'm really sorry that we couldn't take your questions, but as Anuja very rightly said, अगर कोई भी आपका question हो, please always feel free to write to Anuja and she will definitely share it with me. And we would love to even have ideas from you of what more we can do together, right? Because it's not a single journey. We can't be solo travelers. We have to be together and always not behind anybody or beside, but we have to be beside each other, Yes. right? So we have to walk the path together. So thank you so much, Anuja, and I would like to convey my sincere thanks to your organization, Iti Skill School Foundation for Climate Change. I think I did browse through it, and you are doing an amazing work. And I was inspired by your founder, जिनकी मेमोरी में आपने ये पूरा स्टार्ट करा है. So I really give my humble respect and homage to the beautiful lady she was. And all the best to all your efforts. And I would really look forward. Thank you, अजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे से ग्रीटिंग के लिए. और
और मैं बहुत मतलब चाहूंगी अनुजा कि हम लोग मिलके एक्शन ओरिएंटेड भी कुछ Yeah. कामों में साथ में करें। हम लोग दूर हैं, बट वी कैन डेफिनेटली टेक थिंग्स फॉरवर्ड एट अ स्मॉलर स्केल विद सम पायलट्स। एंड अपर्णा जी, जो भी लोग मुझे दिख रहे हैं, प्रीता, अपर्णा एंड रजत, ऑफ कोर्स रजत हैज एन ओल्ड कनेक्शन विद द सेम स्कूलिंग। सो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अनुजा। Yes. थैंक यू। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज थोड़ा सा हमारा स्पीड अप हो गया सब कुछ, लेकिन हम एक और बार करेंगे सेम कॉन्वर्सेशन, जिसमें कि शायद हम वो 15 आवर्स के ऊपर और डिटेल में जाएंगे। सब लोग अपने अपने आर उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि क्या क्या आप करना चाहते हैं, क्या क्या आप क्या आपके क्या तरीके से आप उस आर को डिफाइन या रीडिफाइन करना चाहते हो। सो इट विल बी ग्रेट टू डू दैट, एंड वी लुक फॉरवर्ड कि जब हम लोग नेक्स्ट अपना सेशन करें तब आप लोग ज्वाइन करें और भी लोगों को लेकर आए, बिकॉज इट टेक्स अ विलेज टू डू एनीथिंग, राइट फ्रॉम रेजिंग चिल्ड्रन टू क्लीनिंग अप आवर सिटीज एंड आवर एनवायरनमेंट। सो मुझे बहुत खुशी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, नमस्ते। बाय, गुड यस, नाइट, एवरीबडी स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय। यस। थैंक यू।